Hello everyone. So we're going to do Euler number part 2. In the last session we have seen like definition of Euler number, what is Euler number, application of Euler number. We have seen like I think two application. We have seen the one application, finding the co-prime number below a number. Now we're going to see the remaining application of the Euler number. So if you have any doubt in the first part, you can let me know in the comment section. So let's get started with the second application. That is the sum of co-prime numbers to n less than n. And the similar thing, similar question I have covered in the factors also. Fine. So here I will be explaining this concept in detail. So this is the formula that is written here, sum of co-prime numbers to n less than n. Let's first understand what it is asking, what this statement is about. So let's take again a simple example. Let's take 6. So like 1, 2, 3, 4, 5. These are the numbers that are less than 6. Okay, तो यहाँ पर this is talking about natural numbers. Fine. This is talking about natural number less than n, that less than n natural numbers. Fine. So 1, 2, 3, 4, 5. These are the numbers less than 6, and you need to find the sum of these numbers which are co-prime. Like 1 is co-prime. अच्छा 1 co-prime है तो इसका एक अपोजिट होगा, है ना, 5 ये भी co-prime होगा. 2 is not co-prime and 4 is not, 3 is not. So how many numbers are co-prime? 1 and 5. You need to find the sum of these numbers. So that is 6. I hope now you understood this statement. You need to find like जो number दिया होगा उसके नीचे जितने नेचुरल नंबर्स हैं उससे लेस एंड को प्राइम है उस नंबर से, उसका सम निकालना. आई होप अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट एवरीवन, एंड लाइक इसका मतलब समझ में आ गया तुम्हें व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट. And we already know, like, so this was the thing that we need to do. But suppose a big number, है ना, like I have given you examples. Let's take any big number. Suppose this is the number. You need to find the sum of co-prime numbers, है ना, numbers that are less than this and co-prime to this number. उनका sum निकालना है. Then you cannot do like this. ऐसे करना तो possible नहीं है. So for that, this is the formula that we can use. n/2 एंड यूलर नंबर. अच्छा, ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ. यू हैव टू थिंक ऑन दिस थिंग कि ये फॉर्मूला कैसे बना. ठीक है, यू हैव टू थिंक कि इस फॉर्मूले का लॉजिक क्या है. ठीक है, ये ऐसा फॉर्मूला क्यों है. तो ऐसे तुम 2-4 एग्जाम्पल लिखोगे, तुम्हें ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना. यू हैव टू जस्ट पॉन्डर अबाउट, यू हैव टू जस्ट थिंक ऑन दिस लाइन कि ये फॉर्मूला कैसे लाइक रिड्यूस हुआ है. ठीक है, तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला है n/2 e. So now let's do the few questions. Statement is clear. Now let's do the few questions. So this is the first question. Find sum of natural numbers below 360 that are co-prime to it. ठीक है, 360 के नीचे जितने नंबर नेचुरल नंबर्स हैं जो 360 से co-prime है वो निकालने. तो फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड द यूलर नंबर ऑफ 360. यूलर नंबर ऑफ 360 will be, and you know 360 have 2, 3, 5. These prime number, any other prime number, I don't think. These 3 prime numbers. So we don't need to even write the prime factorization form. We can directly do this thing. Because we are sure that there are no other prime factors of 360. अगर sure नहीं हो, then just do. है ना, then just do the prime factorization. अगर sure हो तो directly कर सकते. 12, 96. तो इसका यूलर नंबर आ गया 96. Now we will just put the value. So Euler number of 360 is 96, and formula for this thing, sum of co-prime numbers that are natural numbers, that is n/2. n is 360. 360 by 2 into Euler number, that is 96. So this is your answer. 180 multiply कर लेना ना, 180 into 90. Fine. Now let's do this question. Find the sum of natural numbers below 1000 that are not multiple of 3 or 5. Find the sum of natural numbers. अगेन क्वेश्चन स्टेटमेंट सेम है तुम्हारा, बट अब देखो एक चीज़ तुम्हें समझनी होगी. जस्ट जो लास्ट जो ये वाले क्वेश्चन हमने किए ना, लाइक दिस क्वेश्चन सेम, जस्ट रिलेट करना उसको. वहाँ पर मैंने नंबर्स के टर्म में बताया था. हियर वी गोना सी इन द टर्म ऑफ समीशन, सम के फॉर्म में देखने वाले. यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा था,
1000 था, तो वी आर लुकिंग फॉर द नंबर दैट हैज़ द मल्टीपल ऑफ 2 ऑल्सो, 3 ऑल्सो, 5 ऑल्सो, है ना. वी आर डूइंग दिस थिंग सेम फॉर दिस थिंग. 1000 is given here, 1000 is given here, so you need a number that is मल्टीपल ऑफ. पहले मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ, देन आई विल लाइक समराइज कि कैसे क्या करना है. ठीक है, अगर तुम्हें वो समझ में आ गया होगा तो दिस विल बी ऑल्सो यू विल बी एबल टू कैच अप वेरी इजिली. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो 1000 एंड 3 और 5, 1000 के पास कोई नंबर चाहिए जो 3 और 5 का मल्टीपल हो. 5 का तो है, 3 का मल्टीपल तो लाइक 1005. अच्छा, मैं इतना जल्दी क्यों सोच पा रहा हूँ, मुझे पता है डिजिटल रूल क्या होता है 3 का, कि लाइक सम ऑफ डिजिट्स होना चाहिए. तो ये 1 है, तो इसमें कितना ऐड करो, अगर 2 ऐड करोगे तो ये 3 मल्टीपल बन जाएगा, बट 5 का नहीं होगा. तो 5 का मल्टीपल होते हैं, तो दिस इज द वे, है ना. जितना तुम नंबर्स पे काम करोगे उतना जल्दी तुम सोचने लगोगे. ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग कि तुम कैसे इतना जल्दी सोच. ओके, तो दिस इज द नंबर. अब देखो मैं करना है क्या है, वी हैव टू डू एवरीथिंग ऑन दिस नंबर. हमें सारा का सारा काम इस नंबर पे करना. तो लाइक फॉर्मूला इज n/2 e. so we have to find the partial Euler number of this number. ठीक है, partial Euler number, again I am repeating partial Euler number, and n की जगह पे ये वैल्यू यूज करनी है. ठीक है, अब remove this thing, remove this thing. We are solving this question, simple. We are solving this question. ठीक है, and to solve this question we have to use the partial Euler number वाला जो concept था, we'll be using that to find the partial Euler number of 1005 with respect to 35. ठीक है, अगेन ऐसा कुछ टर्म नहीं होता है, बुक में कहीं नहीं मिलेगा. इज द जस्ट टर्म मेड अप बाय मी, है ना. तो हम ये अपने कन्वीनियंट के लिए यूज करेंगे सिंगल्स. तो 1005 इंटू 2/3 इंटू 4, बस इसमें 5 2 0 1, सही है. 3 5 6 7 7 8 48 5 536 आ रहा है. ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना अगर कहीं पर एरर आ जाए. मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हो सकता है उसकी वजह से, कैलकुलेशन की वजह से फाइनल आंसर गलत आ जाए, तो डैट यू हैव टू टेक करो. ठीक है, 536 आ गया. अब फॉर्मूला क्या है, n/2. n हम ये वाला यूज़ करेंगे, केयरफुल ये चीज़ को ध्यान देना. n वी विल बी यूजिंग दिस थिंग बिकॉज हमने सारे कैलकुलेशन इस पे किए हैं. 532 2 6 8. So I'm using here calculator. Just let me use calculator. इतना बड़ा तो मैं मल्टीप्लाई नहीं. We have to multiply this. One double 05 260 थी ना, that is 269,340. ठीक है, this number will come. Let me just again 269,3. Okay, so this is coming. I have used the calculator. Now अब देखो निकालना हमें क्या था, we have to find number below 1000, sum of those numbers that are co-prime to, not multiple, are co-prime to 3 5 and below 1000. तो हमने 99 तक करना था, बट हमने कहाँ तक किया है, 1000 1001 and 2 1003 हमने यहाँ तक किया. तो जो नंबर एक्स्ट्रा है वो हमें हटा देने हैं, है ना. अब इसमें कौन से नंबर इंक्लूड हैं, इसमें नंबर वो वाले इंक्लूड हैं जो
3 और 5 के मल्टीपल्स नहीं है, जो 3 या फिर 5 के मल्टीपल्स नहीं है, है ना? तो ये तो 5 का मल्टीपल है, ये हट जाएगा। ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये हटाना पड़ेगा हमें। ये इंक्लूडेड है ना इसमें, बिकॉज दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, नॉट मल्टीपल ऑफ 5। दिस इज मल्टीपल ऑफ 3 अगेन, this is not multiple of 3, not multiple of 5, so you need to remove this also. This is again not multiple of 3, not multiple of 5, so this is again, so these numbers you need to remove, then you will get the final answer. So just let me add, so this is 8, so basically 2 6 9 3 4 0, and this is 8 0 0 and 3, that is 2 3 3 6 2 6, so this is the answer 2663। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा हो गए, बस स्टेप्स देखो, स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेप सिंपल है। लेट मी जस्ट समराइज दिस थिंग, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब देखो करना क्या है, अब जैसे ये नंबर दिया 1000, हमें फाइंड करना है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिलो 1000 डेट आर को प्राइम टू 35 एंड, या फिर बोल सकते हो नॉट मल्टीपल, को प्राइम बोलो या फिर नॉट मल्टीपल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसे नंबर का तुम्हें सम फाइंड करना है, बट प्रॉब्लम क्या है, अगर 1000 पे जैसे यहाँ पर यूलर नंबर लगाओगे ना, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो वो इंटीजर टर्म नहीं आएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, विल फाइंड द नियरेस्ट नंबर टू द 1000 दैट इज मल्टीपल ऑफ 3 ऑल्सो 5 ऑल्सो। इस साइड को भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इधर करोगे, आई थिंक दैट नंबर वुड बी 990, है ना। तो इधर से तुम्हें फिर ये वाले चेक करने पड़ेंगे, 990 89 से, है ना, 990 से, 990 991 से लेकर यहाँ तक के नंबर में चेक करने पड़ेंगे, और फिर वो नंबर ऐड करने पड़ेंगे दोनों साइड, जैसा हमने उसमें कर रहे थे, सेम सेम है, बस इसमें सम के टर्म में है, वहाँ पर सिर्फ नंबर्स के टर्म में था, ठीक है। 35, तो ये ऐसा नंबर आया 1005। अब क्या करो, इसको बस रिप्लेस कर दो 1005। अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स below 1005 that are co-prime to 35, that are co-prime to 35 or that are not multiple of 35, ठीक है, एक ही चीज है। वो नंबर्स का सम हम फाइंड यूजिंग पार्शियल यूलर, यूजिंग पार्शियल यूलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। पार्शियल यूलर कॉन्सेप्ट, जैसे पार्शियल यूलर कॉन्सेप्ट में क्या होगा, n/2, अब यहाँ पर यूलर नंबर ना पुट करके विल बी पुटिंग पार्शियल यूलर ऑफ 1005 विद रिस्पेक्ट टू 35, और यहाँ पर n ये होगा, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन ही अब 1005 के लिए सॉल्व, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लोगे, ये जो वैल्यू आ जाएगी जो भी आ रही थी, है ना। आफ्टर डेट अब तुमसे क्वेश्चन देखो पूछा था 1000 के नीचे का, है ना। क्वेश्चन में यहाँ ये इंक्लूड था, बट तुमने कहाँ तक कर लिया है, हमने कहाँ तक सॉल्व कर लिया, वी हैव सॉल्व टिल हेयर। तो इसमें से तो एक्स्ट्रा नंबर इसमें ऐड हुए होंगे, एक्स्ट्रा नंबर कौन से, इसमें कौन से नंबर है, नंबर डाटा नॉट मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो इसमें जो नंबर ऐड हैं डाटा लाइक ये नहीं ऐड है, बिकॉज दिस इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं ऐड है, बाकी नंबर ऐड है, ये 3 और 5 का मल्टीपल नहीं तो ये इसमें ऐड है, ये 3 और 5 का मल्टीपल नहीं तो ये ऐड है, ये भी ऐड है। तो यू नीड टू जस्ट रिमूव दिस नंबर, राइट। आई होप नाउ इट इज क्लियर। So this is the way to solve these type of question। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, बाकी प्रैक्टिस सीट में तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे, तुम खुद से वो कर लेना। ओके, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिलो 810 दैट आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2729। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। तो अब इससे पास में सोचो कौन सा मल्टीपल है, ये 2 का तो है, 7 का नहीं है, 29 का भी नहीं है, 2 7 29। यू नीड टू फाइंड अ नंबर के क्लोज में हो और इसका मल्टीपल हो। तो क्या कर सकते हो, अब नंबर तीनों का मल्टीपल चाहिए ना,
तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 29 इंटू 14, 9 4 36, 8 9 22, 406, 406 नंबर आएगा जो मतलब स्मॉलेस्ट नंबर जो इसका मल्टीपल होगा। फिर हाँ ये आ गया, हिट 12, हिट 12, हिट 12। इसके क्लोजेस्ट नंबर है 812। आई थिंक इसके पीछे तो इतना क्लोजेस्ट होगा नहीं, यही सबसे क्लोजेस्ट नंबर है। 812 इज द नंबर जो इन तीनों को मल्टीपल है। तो सेम प्रोसेस फॉलो करें, इसको हटाकर 812 के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लें। एंड फर्स्ट फाइंड द पार्शियल यूलर ऑफ 812 विद रिस्पेक्ट टू 2 7 29। बाकी नंबर के मल्टीपल से हमें कोई मतलब नहीं। तो दैट विल बी 1/2, 6/7 एंड 28/29। और ये कितना आ रहा था, 406 है ना ये, तो ये ट्वाइस आ जाएगा है ना। 6 12 इंटू 28, तो 12 इंटू 28 96 एंड 24 9 33, राइट। 12 96 24 9, ठीक है। तो इतना आ गया 336, 336। अब ये हमने तो टर्म्स निकाले ना, सम निकालना है। समीशन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ई, n/2 पार्शियल यूलर, यहाँ पर ये वाला यूज़ करेंगे नंबर। n कितना है 812। गलती यहाँ पर हो जाती है कि हम n ये ले लेते हैं, ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करना है। 336, अगेन आई विल बी यूजिंग कैलकुलेटर। 406 इंटू 336, इंटू 136 1, we are getting 136,460. So this is the number. Now question is asked below 810। 810 के नीचे पूछा था, हमने क्या किया, हमने 812 के नीचे फाइंड किया है। तो हमने कौन से नंबर एक्स्ट्रा लिए, 810 और 811, दो नंबर एक्स्ट्रा लिए ना। तो ये दो में वी नीड टू रिमूव दोज नंबर दैट आर मल्टी। अब इसमें कौन से नंबर हैं, इसमें वो नंबर्स हैं दोज आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 7 और 29। तो देखो ये 2 का मल्टीपल है तो ये तो इसमें होगा नहीं, ठीक है। ये 7 का मल्टीपल है क्या, 7 का मल्टीपल 1 नहीं, इज नॉट मल्टीपल ऑफ 7। 29 का मल्टीपल है क्या, नहीं होगा क्योंकि 29 का ही मल्टीपल है। दिस नंबर आई थिंक इज एडेड है ना, तो वी नीड टू रिमूव दिस नंबर 811। दिस इज 50653। तो आई दिस इज द आंसर, अगर हमारे कैलकुलेशन सारे सही। 35605 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आई होप प्रोसेस क्लियर आ गई, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, प्रैक्टिस करोगे और होता जाएगा। ओके, नाउ दिस वन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी अलजेब्रा में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन। HCF वगैरह के तो डेफिनेटली होते हैं। चलो देखते हैं क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सच दैट x एंड y आर को प्राइम। तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू, सपोज दिया हो तुम्हें लेट से 11, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन सच दैट x, सेम इक्वेशन है, जस्ट n की वैल्यू 11 है, सेम क्वेश्चन है, n की वैल्यू मैंने 11 पुट कर, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पर मैंने सेम सब कुछ है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुमको एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। n की वैल्यू 11 है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 11 सच दैट x एंड y आर को प्राइम। तो अब सॉल्यूशन कैसे करोगे, तुम ऐसे लिखते होगे 1 10 ना, 2 9 3 8 4 7 5 6, इसके बाद रिपीट करने लगेंगे। तो अब इसमें से देख लो, ये वाला काउंट हो जाएगा, ये वाला काउंट हो जाएगा, ये काउंट हो जाएगा, ये काउंट हो जाएगा, ये काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो सारे काउंट हो जाए तो कितने सॉल्यूशन हो गए, ये 5 हो गए है ना, 5 सॉल्यूशन ये हो गए 5। अब
इसी को रिवर्स कर दोगे 6 5 हो जाएगा ना, ये 6 5 और फिर 7 4 ऐसे कर करके तो 5 और होंगे सेम। एक्स वाई पूछा है ना, तो एक बार x1 होगा, एक बार x, तो ऐसे करेंगे इसके डबल 10 सॉल्यूशंस हो। ठीक है। अब अगर ये नंबर लेट से 12 हो तब क्या होगा, देन 1 11 2 10 3 9 4 8 5 7 6 6, दिस इज एक्सेप्टेड। अब ये को प्राइम नहीं है ना, दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये को प्राइम नहीं है, ये वाला एक्सेप्टेड है, ये वाला भी नहीं एक्सेप्टेड है, ये वाला एक्सेप्टेड। तो कितने सॉल्यूशन में, दो सॉल्यूशन ऐसे हैं, और अगर एक्स वाई करोगे तो 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे, 1 11 11 1 5 7। अब अगर इसकी जगह सपोज एक बड़ा नंबर है, अब कैसे करोगे, है ना, सपोज एन की वैल्यू, एन की वैल्यू 112 है, देन हाउ विल डू, तब कैसे करेंगे, देन इट्स नॉट पॉसिबल टू डू लाइक दिस, है ना, तो देयर मस्ट बी सम वे। अभी मैं तुम्हें स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था, जैसे 7 था, या फिर 12 ले लेते हैं, लेट्स टेक 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो ये है, तो इसके रिस्पेक्ट में एक टर्म है, अगर और कौन सा, 3 भी को प्राइम, 4 भी नहीं है, 5 5 को प्राइम है, तो इसके रिस्पेक्ट में एक टर्म है, व्हाट इज दिस, दीज आर द सॉल्यूशंस ना, 1 11 5 7, यही सॉल्यूशंस आए थे, यही सॉल्यूशंस आए थे। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द यूलर नंबर, यूलर नंबर कितना है, 4 है ना, यूलर नंबर ऑफ 12 देखो कितना आता है, यूलर नंबर ऑफ 12 इज 1/2 2/3 6 2 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज द यूलर नंबर। आई होप समझ में आ गया क्यों ये सॉल्यूशन हो रहे हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज यूलर नंबर ऑफ एन, सिंपल। ठीक है, तो कितना भी बड़ा नंबर हो, यू नीड टू जस्ट फाइंड द यूलर नंबर ऑफ दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे ये HCF वगैरह में होते हैं, सो दैट वी गोना टॉक अबाउट। नाउ वन थिंग रिमेंबर, इसका सॉल्यूशन यूलर नंबर होगा, ठीक है, एंड दिस विल गिव द ऑर्डर्ड सॉल्यूशन। एक टर्म समझ लो, ऑर्डर्ड सॉल्यूशन, या फिर ऑर्डर्ड पेयर सॉल्यूशन, है ना, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अनऑर्डर्ड में क्या होगा, अनऑर्डर्ड में सॉल्यूशन हो जाएगा En/2। अब सपोज यहाँ पर एक्स वाई ना बोलता, यहाँ पर बोलता फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, लाइक देयर आर टू नंबर्स, ऐसा बोल देता, वो सिर्फ टू नंबर बोल देता, उनकी नेमिंग ना करता, लेबलिंग ना करता, ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड द अनऑर्डर सॉल्यूशन। तो लाइक जैसे 1, यहाँ पर देखो 1 और 11 मैटर कर रहा था, मैं बोल रहा था ये दोनों अलग हैं, बट अगर सिर्फ पेयर बोलोगे तो बोथ आर द सेम पेयर, अगर पेयर बोलोगे तो सेम है। अनऑर्डर्ड पेयर में अगर देखोगे तो 1 11 11 1 डजेंट मैटर, बट ऑर्डर्ड सॉल्यूशन या फिर नेमिंग सॉल्यूशन या फिर लेबलिंग बोल लो, नेमिंग बोल लो, ठीक है, ऑर्डर्ड सॉल्यूशन, लेबलिंग, नेमिंग, ये अगर 3 4 चीज़ें होंगी देन सॉल्यूशन विल बी यूलर नंबर, ठीक है। अदरवाइज अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन पूछेगा तो ये होगा, मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी कर दिया कि अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन क्या है और ऑर्डर्ड, लेबलिंग, नेमिंग सॉल्यूशन, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। यूलर नंबर सॉल्यूशन होगा जब ऑर्डर्ड है, यूलर नंबर बाई 2 होगा जब अनऑर्डर्ड है। HCF ऑफ टू नंबर्स एक्स वाई इज 14, ठीक है। तो ये जिसको HCF का थोड़ा कॉन्सेप्ट पता है दैट्स ग्रेट, नहीं पता है तो इसको चाहो तो एक बार HCF पढ़ने के बाद देख लें, ठीक है। एनीवे अभी भी समझ सकते हो, बहुत आसान सी चीज़ है। अगर दो नंबर का HCF 14 है तो नंबर को क्या लेंगे, ये HCF में तुम्हें पता चलेगा 14A और y को लेंगे 14। अगर HCF ऐसा होता है तो नंबर ऐसे ले। द वैल्यू ऑफ सम, अब बोल रहा है कि x प्लस वाई मतलब 14A 14B इक्वल्स टू 150। अच्छा एक और बात का ध्यान रखना है यहाँ पर, जब ऐसे नंबर लोगे ना तो A और B को प्राइम होंगे। अगर तुम्हारा HCF 14 है तो
अगर तुम x14a ले रहे हो, y14b ले रहे हो, तो दिस इज द कंडीशन दैट a एंड b आर को प्राइम। अदरवाइज क्या होगा, इनका HCF 14 नहीं रहेगा ना। अगर ये को प्राइम नहीं होंगे तो इनका HCF कुछ और हो जाएगा, 14 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो दैट्स वाई दिस इज द रीजन। तो a प्लस बी इक्वल टू 11। ठीक है, अब देखो नेमिंग कर रखा है, ऑर्डर्ड पेयर पूछे तो इसका यूलर नंबर दैट इज 10, 10 इज द गॉट इट, सिंपल। ये वाला देखते हैं, सेम क्वेश्चन, HCF ऑफ टू नंबर, तो नंबर क्या होंगे 12a प्लस 12b। अब यहाँ पर देखो HCF ऑफ टू नंबर्स बोल दिया, HCF ऑफ टू नंबर्स, वैल्यू ऑफ सम ऑफ द नंबर्स, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स सच पेयर एग्जिस्ट। दे हैवंट लेवल्ड, उन्होंने कहीं पर नहीं बताया कि एक्स वाई पेयर हैं, या फिर दे हैवंट से ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा, सेम क्वेश्चन है बट सॉल्यूशन यहाँ पर यूलर नंबर बाई 2 हो जाएगा। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू बी केयरफुल। 12 7 84, 7 84 सेम है। ठीक है, ए प्लस बी आ गया। तो अब इसका जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखो ऑर्डरिंग थी, लेबलिंग थी बेसिकली। ऑर्डर वो बोलेगा ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, बट यहाँ पर लेबल था एक्स वाई, तो ऑटोमेटिक ऑर्डर्ड हो गया। तो यहाँ पर आंसर था यूलर नंबर। बट यहाँ पर क्या है, दे लाइक उन्होंने ये भी नहीं बोला ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करो, और कहीं पर लेबलिंग भी नहीं है। सो आंसर विल बी यूलर नंबर ऑफ 77 बाई 2, and Euler number of 77 will be 6 into 10, that is 60. So answer will be here 30. 60 by 2, that is 30. So for this answer will be 30. Fine. So last application of Euler number. I hope ये समझ में आ गया। इक्वेशन वाला इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा में कहीं कहीं इक्वेशंस आ जाती हैं दैट यू नीड टू डील। तो अगर ये चीज़ पता होगी यू कैन इजिली सॉल्व द इक्वेशंस, बिगर बिगर इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक इम्पॉर्टेंट तो लगभग सभी थे, बट ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर रिमाइंडर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो देन इट गोना बी लाइक दिस गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिमाइंडर का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें ये यूज करके तुम क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो। So let's understand this statement, and what is this, like a to the power n by b where a and b are co-prime। अगर a और b तुम्हारा co-prime है, अगर a और b तुम्हारा co-prime है एंड, ठीक है, देखो कंडीशन, कंडीशन ध्यान से सुन लो, a और b co-prime होना चाहिए if n is the Euler number of b, और जो पावर है ये b की यूलर नंबर है, then the remainder will be 1। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 2/3 एंड दिस इज 2, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा, बिकॉज 2 and 3 आर को प्राइम एंड यूलर नंबर ऑफ 3 is 2, जो पावर है वो इसका यूलर नंबर है, देन रिमाइंडर विल बी सिंपल सी स्टेटमेंट। इस कंडीशन ध्यान रखना कि ए और बी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम होने चाहिए, और पावर जो हो वो न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की यूलर नंबर या उसका मल्टीपल होना चाहिए, यूलर नंबर या उसका मल्टीपल भी चलेगा। फाइन, so now this is the question, 11 to the power 16 divided by 48 and you need to find remainder क्या होगा। तो देखो 48 का यूलर नंबर क्या होता है, 48 का यूलर नंबर वुड बी कि लाइक यहाँ पर 1/2 एंड 2/3, 3 6 8 2 16, 16 यूलर नंबर दिया तो इसका रिमाइंडर 1, एज सिंपल एज नथिंग एल्स। फाइंड द रिमाइंडर 231 टू द पावर 256 480। ओके, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एंड इफ यू हैव like studied remainder already then try this question, otherwise we will discuss this question once we'll be doing the remainders। Okay, so I hope like you understood this theorem basically, like just I have introduced, we will discuss this thing in the detail when we will do the remainder question। ठीक है, just theorem समझ लो basically part क्या है and theorem क्या है, we'll see this thing in the detail in the remainders। So that's it, and make sure you join this Telegram channel and subscribe to this. Let's see you in the next video.